आप अपने बच्चे को घर में क्लोज्ड एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें थिंग्स आर यू हैव सॉर्टेड देम आउट बट दे हैव टू फेस द रियल वर्ल्ड. Physiological changes, they have emotional changes as well. When they are at 14, 16, वो trauma of real होता है. If you are having a dysfunctional family, absence of a parent, especially the father. ऐसे बच्चे ज़्यादा vulnerable है जो सिंगल पेरेंट के साथ है, not because they are with a single parent but because they are a ping pong between both parents. So all these people जो कि position of authority में हैं या they are also like closely connected to the families. जो aged men हैं they heavily take advantage of this. जो family doctors हैं they take advantage. This is a kind of way to trap girls for the sake of drugs. स्कूल के अंदर भी या कॉलेज के अंदर जो बुलिंग का एक कल्चर होता है that also affects your mental health. वो बुली को हमने लेबल कर दिया that they are bad people. जो कहते हैं we keep a hawk eye on our kids. उनके बच्चे सबसे ज्यादा ऐसी illicit एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं. 3, 2, 1. Amna, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? I'm good. How are you? Alhamdulillah. It's really good to get to meet you in person. Thank you so much for calling me. I was really looking forward to this. जी बिल्कुल. And I actually saw some of the videos that you're developing. It's really good work, I must say. Thank you so much. So all the awareness that you're trying to raise on mental health issues, it's a great service that you're doing. Thank you so much. And I was just going through your podcast and I was really inspired. That's why I reached you out and I pitched myself, and thank you for having me. Thank you for replying me so, well in time and just calling me over. Thank you so much. It was really nice talking to you. It was actually the conversation that we had. I actually realized that this issue of parenting adolescence is so important, and this is like one of the topics जिसके ऊपर हम ज़्यादा बात ही नहीं करते. ज़्यादा क्या, हम बात करते ही नहीं है इस टॉपिक पे. एंड दिस इज़ सच अ सैड रियलिटी. और कि ये वाली जो एज है फ्रॉम 14 to 20 इट गोज़ निगलेक्टेड कम्प्लीटली. और कोई इसके बारे में बात नहीं करता बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स to portray कि we are the white people of the society and we are not. और यहाँ पे जो problems हैं जो कि आपकी teenage में आते हैं they come for the black people. यानी white और grey जो है वो नहीं होते, वो black हैं, they are bad people. तो nobody wants to talk about their vulnerabilities post that age. तो जिसकी वजह से ये एक जो है ना वो gap void create हुआ है कि कोई भी उनके rights के बारे में या उनके problems के बारे में बात ही नहीं करता. So you've been working as a student counselor for a number of years. You have worked in different areas, particularly girls education के ऊपर आपने काफ़ी काम किया हुआ है जो with girls colleges, and you have been interacting with girls between 14 and 18 years of age for quite some time. So I'm sure like that might be a good sort of like number of persons that you have talked to. जिनके साथ you keep an open communication that they feel comfortable coming to you and talking to you and discussing all of their problems. So tell us a bit about what sort of problems usually girls in this age particularly they are facing. सबसे पहले तो the challenge itself is the age. Like from 2 to 10 कि आप kids की उसमें आते हो, and then when you are going from 12 to 14 you are entering the teenage. तो टीन एज में जो सबसे पहला चेंज है दैट इज़ द बायोलॉजिकल चेंज. यू आर चेंजिंग बायोलॉजिकली, योर फिजिक इज़ चेंजिंग, इट्स द प्यूबर्टी दैट यू आर हिटिंग. then there are hormonal changes, and because of the hormonal changes and the biological changes there is a lot of psychological impact on you. और उस इम्पैक्ट को मतलब ये तीनों चीज़ें जो है आपकी लाइफ उस टाइम पे यू आर द मोस्ट वनरेबल पर्सन. आपकी बॉडी भी चेंज हो रही है, आपकी जो है सोच, आपके सोचने का तरीका चेंज हो रहा है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग के बिकॉज नोबडी टॉक्स अबाउट इट, तो जो आपके सोचने का तरीका चेंज हो रहा होता है इट इज़ पुटिंग यू इन अ गिल्ट कि मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ. When you are hitting the puberty, you start liking the opposite sex, you start developing that feeling, and that thing because it is despised in our country, तो वो एक जो है sense of guilt भी उस time पे, because there is nobody telling you that it's okay. So that guilt also. And primarily I think that's also because like as a kid you are taught कि
खास तौर पे ये फलानी चीज़ जो है ये गुनाह है, हाँ, आपने इसको exactly, नहीं करना है. exactly. So once you actually get into that age biologically, that you start to develop those interests, so you feel कि पता नहीं आपने कौन सा गुनाह कर दिया, to Exactly. think like that. और आपको क्योंकि nobody talks about that, तो आप और आपने जो भी सुने होते हैं from the elders, वो high virtue जो है वो conversations होती हैं कि मैं बहुत शरीफ थी. This is normally we listen कि ये लड़की बहुत शरीफ है, इसने तो कभी किसी लड़के की तरफ देखा नहीं, and so on so forth. So you start comparing your thought process and you feel so intimidated कि अगर मैं इसके बारे में बात करूँगी तो everybody will judge me that oh my god, ये तो she's talking about guys or she's liking guys, and she starts questioning herself कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों है, why am I not that pious person कि जिसको जो है attraction नहीं होनी चाहिए, because apparently शरीफ होने के लिए ज़रूरी है that you are not feeling attracted towards somebody. तो ये एक बहुत बड़ा problem है कि attraction is very normal. It's a natural biological process that happens in everybody's life. But because it's not talked about, so everybody when reaches that age, I know a lot of girls who say when they are in that age, वो नमाज़ों में सजदों में रोती हैं that अल्लाह ताला मैं तो इतनी बुरी नहीं हूँ, then why am I getting such thoughts? Why am I being attracted towards the guys? These are the actual problems. These are the students who came to me and said that, ma'am, there are so many students here. They don't feel this way. Why am I feeling this way? I'm offering my prayers, मैं रोज़े रखती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद I still feel these things. So मैं क्या गुनहगार हूँ? So this is one question that comes every student, every third student who comes to me, उसका यही सवाल होता है कि मैं तो बहुत गुनहगार हूँ कि बाकियों को ऐसा फील नहीं होता, मुझे क्यों होता है? हालांकि सबको, everybody, I won't even say 99%, 100% of the girls and the boys as well, when they are reaching puberty or hitting puberty, they are going to develop feelings. क्योंकि natural process है. This is how the aging process is going. This is how your life will navigate forward. You will reach towards your marriage age and things in that. तो ये तो physiological है. It has nothing to do with आपके अच्छे होने बुरे होने से. हाँ, there are the ways how you go through it, that decides if you are a good person or a bad person, गुनहगार हो या नहीं हो. But having feelings on the first place, that is so physiological. We need to understand this. तो ये चीज़ जो है इसका absolutely knowledge ही नहीं है. और and students they go through unnecessary trauma because of it. So एक तो चीज़ होगी कि like they are going through a lot of changes physiologically. At the same time उनकी emotional needs के बारे में what do you in your experience how do you see that कि जो emotional needs हैं, do they also like fluctuate a lot? Yeah, obviously, क्योंकि एक तो आपकी when your body is changing, naturally you start feeling shy. ठीक, you get very conscious about your body, the changes in it. ठीक, फिर दूसरा you are hormonally भी आपके अंदर changes आ रहे हैं. Now the hormones they are messing up with your psychological health. You will be having rush of emotions. ठीक, फिर आपका जब menstruating time period start होता है, before that you will be having mood swings and you will be going through pain. So ये सारी चीज़ें जो है they will be changing the course of your emotions. Then again the physical attraction that you will feel towards the opposite gender. तो ये सारी चीज़ें जो हैं they will be changing how you have been feeling emotions before that. तो अब वो जो emotions हैं, the problem is that the emotions are not wrong. The feelings are not wrong. The thing is that they should be guided how to get through that time period. ठीक है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि हमारे यहाँ इस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज ही नहीं किया जाता, इस चीज़ को कहा ही नहीं जाता. इफ़ अ चाइल्ड इज़ कमिंग टू हर पेरेंट्स एंड सेइंग कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो द फर्स्ट आंसर इज़, या मुझे डिप्रेशन हो रहा है, या आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग एंशियस, तो द फर्स्ट रिएक्शन इज़ तुम्हें किस चीज़ की कमी है. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट रिएक्शन. ठीक है, तुम अच्छा खा रही हो, तुम्हारे पास खाने को चीज़ें हैं, यू हैव गुड थिंग्स टू वेयर, यू गो आउट, व्हाट्स द प्रॉब्लम. नाउ द थिंग इज़ इट इज़ नॉट रिलेटेड एट ऑल टू दैट. ठीक, आपकी बॉडी में चेंज आ रहा है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद गोइंग आउट और हैविंग गुड फाइनेंशियली गुड पेरेंट्स. Presence of parent is important over there. Acknowledgement and validation of those feelings, that is important. तो वो चीज़ जो है, वो वाला गैप जो है, मुझे लगता है ऐसा कि पेरेंट्स जो हैं दे आर
completely I don't know because everybody goes through that, they completely shut their eyes when it comes to the teenager. इसलिए हम कहते हैं that teenagers are tough. You must have heard this, that their teens are tough, and the problem है, और वो हमारी बात नहीं सुनते. My question always is, आपने उन्हें सुना है कभी? They are the most unheard I would say species among humans. कि हमारी species में से the unheard age group that is that teenagers, जो कि आपके 14 से 20 तक है, क्योंकि कोई उनको नहीं सुनता. लोग पेरेंट्स कहते हैं बेवकूफ़ हैं, इनको कुछ पता नहीं है. ये टीनेजर्स हैं, ऑब्वियसली दे हैव फिट्स ऑफ एंगर्स बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस. ठीक है, ये तो हर वक्त गुस्से में रहते हैं. दे आर इनका ध्यान नहीं है, दे आर डिसरिस्पेक्टफुल. तो ये चीज़ें उनको इतने ज़्यादा लेबल्स लगा दिए जाते हैं दैट दे थिंक कि हमारे पे तो लेबल ही इतने लगे हैं दैट वी कैन नॉट टॉक टू देम. ठीक, वो लेबल्स जो है उनसे वो और ज़्यादा जो है वो अपने शेल में क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, एंड दे कीप गोइंग इन दैट. अब उसमें एक बच्ची है, जैसे इफ़ शी इज़ गेटिंग इनटू दैट शेल, साथ में देयर वुड बी अनदर गर्ल, वो भी शेल में होगी. अब दोनों का एक्सपीरियंस सेम है. ठीक, बट बिकॉज दे आर फीलिंग द सेम थिंग, वो आपस में डिस्कस करेंगे. देन दे विल गो टू नेट. फिर वो नेट पे जो भी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट इज़ राइट और रॉन्ग और वॉट एवर, ठीक, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को लेके वो खुद अपने लिए जो भी सही गलत रास्ता है उसको चूज़ करेंगी. सम गर्ल्स दे विल कम टू ऑल व्हाट इज़ प्रेजेंट, और वो उस प्रेशर में जो कि उनको नज़र आ रहा है वो उसकी तरफ चली जाएंगी. द राइट गाइडेंस दैट हैज़ टू कम वो उन तक कभी पहुंचती नहीं है. सो व्हेन दे आर गोइंग थ्रू all these challenges, like they're having physiological changes, they have emotional changes as well. इसके दौरान like जो स्कूल का environment होता है, because like if somebody does not have cordial relations with the parents, जो कि उनसे अगर वो guidance नहीं ले सकते हैं, so जो college का environment होता है, if they have those closer peers, तो वो उनसे मशवरा करते हैं. like वही जिस तरह we were discussing के जिनसे वो डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो भी उनके पास भी उतना एक्सपीरियंस होता है, so like they cannot guide them much. फिर देन स्कूल के अंदर भी या कॉलेज के अंदर जो बुलिंग का एक कल्चर होता है, दैट ऑल्सो इफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ. तो जस्ट टेल अस अ बिट अबाउट कि जो कॉलेज के अंदर एक ओवरऑल एनवायरनमेंट उनको मिलता है आउटसाइड होम, उसके अंदर किस किस्म के चैलेंजेस दे फेस जनरली. अच्छा, अब एक बच्चा है जो अनमेट इमोशनल नीड्स के साथ आ रहा है, जो कि फैमिली, बिकॉज फैमिली इज़ नॉट कम्युनिकेटिव. नाउ व्हेन ही और शी एंटर्स द कॉलेज, अब कॉलेज में अब अनफॉर्चुनेटली जो साथ में बच्चे हैं उनको भी ऑब्वियसली अब दो तरह के हो जाते हैं. एक वो है जो पेरेंट्स से बिल्कुल बात नहीं कर सकते, दूसरे ऐसे उनका डिफेंस मैकेनिज्म इस तरह से बन गया है कि so that nobody can see that we have low self-esteem inside, तो we will portray that we are very cool. ठीक, तो ये चीज़ जो है ना, बेसिकली एक्चुअली they are also struggling, they are also empty from the inside. But in order to cover that, to conceal that, what they are doing is they are taking the role of bully. So like all the bullies in the school, in the college, since they're also like going through similar changes and they don't know कि उसको किस तरह से process करना है, so like showcasing that you are in control of your life exactly feels more, they feel maybe more confident. Yeah. So दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं स्टूडेंट्स. वन, दोज आर बीइंग बुलिड, एंड वन, दोज आर द बुली एक्टिवली. ठीक, तो इन दो में बोथ ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग एक्चुअली. ठीक, वाई? बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू नेविगेट थ्रू दोज इमोशंस. उन इमोशंस को केटर कैसे करना है, उनको अंडरस्टैंड कैसे करना है, इस चीज़ को नहीं समझा जाता. फिर जो है कॉलेजेस में कूल कल्चर, this is something which is happening in the college ke there's always a cool group who comes on big cars. ठीक है, and अच्छा, अब इसमें ये चीज़ है कि द फैमिली, बेसिकली द फैमिलीज वैलिडेशन कम्स फ्रॉम सच थिंग्स, द फाइनेंशियल स्टेटस. वो घर में भी यही बातें होती हैं, मेरी बड़ी कार है, मैं आई एम मोर सक्सेसफुल बिकॉज आई हैव अ बिग कार, आई एम मोर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. द किड्स दे इंटरनलाइज दैट एंड नाउ दे सी दैट in order to gain that control, उनको यही चीज़ें ब्रैग करनी है इन द स्कूल. दे ग्रुप अप द लाइक स्टूडेंट्स. ठीक है, जो लाइक मीन्स मतलब कि एक जैसे लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स जिनके सेम सम हाउ फैमिली बैकग्राउंड सेम है. फिर वो ये होता है कि दे स्टार्ट लुकिंग फॉर द वीकर वंस. ठीक है, जो कि जैसे कि इमोशनल जो बैगेज है इट्स डिफरेंट फॉर एवरीबडी. ठीक, तो जो उस इमोशनल बैगेज की वजह से क्वाइट हो गए हैं, शाय हो गए हैं, इंट्रोवर्टेड हो गए हैं, दे कीप ऑन
ऑन लुकिंग फॉर सच किड्स, और फिर वो उन बच्चों को जो है दे बुली देम बाय सेइंग दैट यू डोंट हैव दिस, तुम्हारे यू कम ऑन अ smaller car just for an example, or they start body shaming them कि okay you are fat, or या तुम ऐसे हो, या you have not physiologically you don't look like a girl as yet. तो इस तरह की जो है वो बुली करते हैं to feel better in themselves. ठीक, तो ये चीज़ जो है ये मतलब actually this is one coin that has two sides. The bully is also suffering and the one who's being bullied is also suffering, but the thing is कि neither do they recognize this nor the people around them. वो bully को हमने label कर दिया that they are bad people, जो bully हो रहे हैं हमने उनको भी label कर दिया कि they are cowards. ठीक, and the reasons that are behind them we are not addressing them and we are not going towards the solutions, क्योंकि ये solution नहीं है कि you are, if somebody is bullying your child, आप उसकी school change कर दो, college change कर दो, या आप उसको जो है you just tell that person के आप because like sorry I'm just cutting you here कि one of the solutions that I think के which is more convenient for the parents is कि either they go to the teacher के वहीं शिकायत लगाने के लिए, या उनकी कोशिश होती है कि बच्चे का स्कूल चेंज करवा दें, but that's actually is not the solution of the problem. That is the worst thing you can right? do to your child. And the solution is probably it's actually because like अगर आप उसका स्कूल चेंज कर भी देंगे या सेक्शन चेंज कर देंगे, faces are going to change, exactly. but the human behaviors are not going to change, right? So the kid needs to learn how to cope up with certain situations, because abhi aap unka school change karwa denge if they go to another school, if they have the similar problems there, and like school essentially is actually a platform where you prepare your kids for life ahead. So then if you are just pulling them out of the school just because of one challenge that they are facing, they will probably think that this is actually the solution to every problem कि आप escape कर लें उससे. Exactly. मैं इसकी बहुत एक example देती हूँ. हम physics में experiments करते हैं. They are called as lab tested experiments, जो कि lab में बहुत अच्छा perform करते हैं. But when you take them out in the commercial vicinity, या उसको commercially उसको launch करने लगते हैं, तो they fail completely. Right. Why? Because in the lab the circumstances or the things they are controlled and very conducive. ठीक, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में उनको लेके जाते हैं तो ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंजेस भी हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स विल बी इंक्लूडेड, तो वो चीज़ वहाँ पे वर्क नहीं करेगी. इट इज़ जस्ट द सेम विद द किड्स. आप अपने बच्चे को घर में क्लोज्ड एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें उसके लिए चीज़ें, थिंग्स आर you have sorted them out, but they have to face the real world. ठीक है, फिर क्या होता है कि when they are at 14, 16, वो trauma of real होता है. ठीक है, I always talk about this thing. I cannot stress more that be transparent to your kids. अपने बच्चे को let it, वो 1 साल का है, 10 साल का है, 25 साल का है, अपने बच्चे से सच बोले. ठीक है, सच से मुराद है छोटी छोटी बात पे भी सच, यानी if you are feeling that I am weak and I cannot do this, tell them. ठीक, because it is so necessary to make them understand कि आपकी जो कम्युनिकेशन है ना वो तब स्ट्रॉन्ग होगी जब आप उनको अपनी वनरेबल साइड शो करोगे. पेरेंट्स अगर अपनी वनरेबल साइड शो नहीं करते बच्चे को, तो वो बार इज सेट वेरी हाई. उनको ये आपको भी ये होगा, मुझे भी ये होगा. फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी हैड बीन थिंकिंग दैट आवर पेरेंट्स आर परफेक्ट. उनमें कोई गलती नहीं है, उन्होंने ज़िंदगी जो गुजारी है, देयर टीन एजेस, उनकी जो प्यूबर्टी थी या बचपन था, उन्होंने कभी कोई शरारत नहीं की. दे हैड बीन द मोस्ट कंप्लाइंट पर्सन. ठीक है, दिस इज़ समथिंग वी हैव बीन. और ये चीज़ रियलाइज़ होती है लेट आफ्टर, जब बहुत वक्त गुजर चुका होता है, व्हेन एंड नॉट जस्ट द पेरेंट्स बट जो बाद इसके अलावा भी जो हीरोज़ के तौर पे हमें कैरेक्टर्स पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में. exactly. तो that's also like probably they were not humans, right? Even so much so like मैं once I sort of like I was interested to know what sort of life some of our national heroes had. And I was surprised to know that they were like normal human beings like us and they also made mistakes. Exactly. लेकिन जिस तरह से हम पोर्ट्रे करते हैं पेरेंट्स भी अपने आप को, और जो बहुत सारे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो then they learn about these characters, so it's just that they were flawless. हाँ, they are too. अच्छा, फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा जो है ना वो बहुत जल्दी हार मान लेता है. वो कहता है भाई इस बार को तो मैं कभी टच कर ही नहीं सकता, छोड़ो. ठीक है, वो रेस स्टार्ट होने से पहले ही
हार मान चुका होता है कि मैं मेरे में तो इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि मैं इस बार तक पहुंच सकूं, चाहे वो पेरेंट्स का है चाहे वो हीरोज़ का है। आपने बिल्कुल यही बात की, तो मैं एर्तुगरुल देख रही थी ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स एंड आई वाज सीइंग, उससे कोई गलती नहीं हुई, कोई फैसला गलत नहीं हुआ। कोई, आप जब एक सीरीज़ बना रहे हैं उसमें अगर ये दिखाया जाता कि ही मेड अ मिस्टेक, these were the repercussions and then this is how he navigated through that, तो that would have been more of a lesson, लोग relate कर सकते हैं। अब आप देखें कि बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा why are people, why do people want to listen to Elon Musk, why do people want to listen to common man, क्यों? क्योंकि रिलेटेबिलिटी है, यू कैन रिलेट टू दैम कि जी ये गलतियाँ भी करते हैं, इनमें प्रॉब्लम्स थी, दिस इज़ हाउ दे फेल्ड एंड देन दे रोज, तो वो आपको ऐसे लगता है कि ये कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। द हीरोज़ विच वी, हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक्स उठा लें, उनमें जो हीरोज़ हैं, हमारे घर में जो हीरोज़ हैं, आर पेरेंट्स, वो तो मतलब अल्लाह ताला ने शायद उनको बिल्कुल जो है ना वो नहला दुल्हा के भेजा है कि ये कोई बुराई नहीं कर सकते। तो वो भी एक प्रेशर जो है ना वो टीनेज में बच्चों पे आ जाता है कि वी हैव टू बी लाइक आवर पेरेंट्स हु आर परफेक्ट। ठीक, तो ये भी जो है ना उन चैलेंजेस में से एक है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो द काइंड ऑफ लाइफ दैट वी हैव डिस्कस्ड दैट टीनेजर्स हैव इज के दे हैव पेरेंट्स जिनके साथ वो ओपनली चीज़ें मोस्ट लाइकली डिस्कस नहीं कर सकते इन मोस्ट ऑफ द केसेस। देन दे हैव पीयर्स या दोस्त उनके जिनके पास उतना एक्सपीरियंस है जितना इनके पास एक्सपीरियंस है, एंड दे एस्पायर to become bullies rather than becoming the victim. So जो bullies हैं वो उनको वो बनने के लिए then they would need to look cool like you said. Yeah. तो वो cool activities जो होती हैं जिनसे वो inspiration लेके they would want to get to that way to feel more accepted in their community and also to feel more desirable or more welcomed in the groups. तो वो क्या ऐसी एक्टिविटीज होती हैं उन cool kids की that they end up following? अच्छा, अब कूल किड्स में सबसे पहले एक जो चीज़ है वो ये है कि दे हैव टू लुक कूल एंड फॉर लुकिंग कूल दे नीड टू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस। नाउ अनफॉर्चुनेटली नॉट एवरीबडी विल बी हैविंग द सेम फाइनेंशियल स्टेटस। नाउ what is the way to gain that financial status? It is via relationship. By relationship you mean like, yeah if there's a guy, he not generally guys, लेकिन लड़कियों में ये होता है कि to get that financial stability or to show कि we are financially stable as well, or I can also go for hoteling and I can go on long drives and etc. So they would be looking for a guy who could do that for them, so who could afford their such हाँ, जो इस तरह की जो चीज़ है वो नाम अपेरेंटली वो यही होता है कि आई हैव फॉलन इन लव विद दैट गाय या वो, लेकिन एक्चुअली द थिंग इज़ दैट दे वांट टू स्टे रेलिवेंट, एज यू सेड कि दे वांट टू बी द कूल पर्सन एंड दे वांट टू स्टे रेलिवेंट। यू वोंट बिलीव कि मैंने जो है कॉलेजेस में ये चीज़ देखी है कि गर्ल्स दे फ्लॉन्ट अबाउट हैविंग बॉयफ्रेंड्स, और जिन लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं दे आर टोल्ड दैट तुम में शायद कोई कमी है, दैट इज़ वाई यू आर नॉट हैविंग अ बॉयफ्रेंड। और ये किस एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 14 yes, peaking at 16 to 18 and and by 19 कोई ना कोई जो है मतलब द कूल दे बिकम द पार्ट ऑफ दैट कूल कल्चर, तब तक वो उसमें शामिल हो चुके होते हैं। राइट, सो बाय 14 they start doing this, right? And by 16 you would see I see matlab 80% of the girls they have boyfriends just for the sake of social acceptance among their peers, कि हमारे आगे पीछे जो लोग हैं they will not accept us if we are not having that। और एक वही जो कि cool क्या है कि if you are not financially sound, just get with a financially sound guy and he will be taking you out to places, you will click photos, you will put them on Instagram and obviously you will look cooler as your peers। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा है। और अब प्रॉब्लम वही है कि क्योंकि किसी और से बात नहीं कर सकते, ठीक है, बात करने के लिए सेम एज ग्रुप के हैं, सेम एज ग्रुप के मतलब सेम थिंकिंग, ठीक है, दे विल बी थिंकिंग इन द सेम मैनर। तो आप जो चीज़ आ रही है वट एवर इज़ कमिंग योर वे, you are not able to differentiate if this is right, this is wrong, क्योंकि at the first place आपने अपने आप को बुरा मान लिया कि मुझे फीलिंग्स आ रही थी, ठीक है। I told you कि जब 14 में आप puberty को हिट कर रहे हैं, you are hitting it, तो you have at that time you were in guilt, nobody told you that this is not something to be guilty about।
तो आपने अपने आप को एक बुरा इंसान तो उस टाइम पे मान लिया, ठीक। आपका जो फ़िल्टर है विच विल टेल यू दिस इज़ राइट दिस इज़ रॉन्ग, वो आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होता जा रहा है, क्योंकि इनहेरेंटली आपके दिमाग में ये है कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ नहीं। फिर आपके हीरोज़ वो इतने अनरीचेबल पोजीशन पे हैं कि आपने कहा कि आई कैन नॉट गो टू दैट प्लेस, मैं तो पहुँच ही नहीं सकती। तो वो वाला जो है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता यू गेट नॉर्मलाइज्ड विद यू नो दीज थिंग्स। शुरू में आपको गिल्टी फील हो रहा था, सब कुछ था, बट देन सम हाउ, क्योंकि आपका नेचुरल मैकेनिज्म है, आपकी जो ब्रेन है वो कहता है कि जो सर्कमस्टांसेस हैं आप उन सर्कमस्टांसेस में सर्वाइव करो, ठीक। तो वो बहुत सारी चीज़ों को शट डाउन करेगा, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देगा आपके लिए, ठीक, कि इट्स ओके, दिस इज़ हाउ इट हैपन्स बिकॉज एवरीबडी इज़ डूइंग इट, सो दिस मस्ट बी राइट। गाइडेंस तो आपके पास है नहीं। अब वो पॉइंट आता है जब बच्चे रिबेलियन स्टार्ट करते हैं घर पे कि आई वॉन्ट टू गो आउट विद माई फ्रेंड्स, वाई आर यू स्टॉपिंग मी। वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे वो रिफ्ट आती है पेरेंट्स की और बच्चों की कि दिस माई किड इज़ बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल। अब वो जो उसका पेनफुल पीरियड था, देयर वॉज नो बडी देयर, नाउ ही केयर्स अबाउट नो बडी, द किड। अब उसको ये है कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, दे डोंट नो वट आई एम गोइंग थ्रू, दे आर नॉट इन माई शूज़, दे आर नॉट फीलिंग दैट वे, वाई एम आई सपोज टू अबाइड बाई वॉट दे आर सेइंग। तो वहाँ से जो है वो जो टीनेजर के साथ आपकी रिफ्ट स्टार्ट होती है वो वहाँ से होती है, और फिर देयर हार्मोनल जो लेवल है दैट इज़ ग्रेटर देन एन एडल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि हार्मोनल चेंजेस टीनेजर्स में आ रही हैं, लेकिन जो हाइप है वो पेरेंट्स में आती है, ठीक है। मतलब कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि वो 30 साल का बंदा अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दे शुड बी रिस्पेक्टफुल ऑल द टाइम एंड दे शुड नॉट बी फीलिंग दीज इमोशंस। तो वो ये वाली चीज़ आती है, यहाँ से पेरेंट और जो बच्चा है उसका रिलेशनशिप और स्ट्रेंड होता है। बच्चे के दिल में पेरेंट्स के लिए और ज़्यादा रिजेंटमेंट डेवलप होती है। एक ये एक्सट्रीम आ जाती है। दूसरी क्या आ जाती है कि वो जो मैंने आपको बताया कि जो कि कांस्टेंट गिल्ट के अंदर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे, दे आर ऑल्सो डूइंग इट, दे आर ऑल्सो गोइंग आउट, दे आर ऑल्सो हैविंग रिलेशनशिप्स एंड नॉट द हेल्दी रिलेशनशिप्स, यू नो द हुकअप रिलेशनशिप्स एंड द रिलेशनशिप्स जस्ट फॉर द like if you're like 14-15 तो उसमें क्या ही like you're gonna have any serious relationship, नॉट इवन इन 16-17, ठीक है। आप ए लेवल्स में हो या आपने यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर यूनिवर्सिटी, तो यू आर, या आप BS स्टार्ट किया है, तो यू दैट्स जस्ट अ हुकअप, ठीक है, यू आर नॉट मैच्योर एट दैट टाइम। तो वो जो कि पेरेंट्स की जो कि एक तो वो हैं जो रिबेलियस हो जाएंगे, दूसरे वो जो रिबेलियस नहीं होंगे, कर वो भी वही रहे हैं, लेकिन दे आर इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ गिल्ट, ठीक है। एक कॉन्स्टेंट डिसरिस्पेक्ट वाली चीज़ में चल रहा है बच्चा, और दूसरा जो है वो गिल्ट में चल रहा है। वो करता है, वो घर आता है, वो रोता है, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं अपने माँ बाप की इज़्ज़त के साथ जो है वो कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी स्टूडेंट्स आती हैं, मैम मैं क्या करूँ, मैं अपनी माँ बाप की इज़्ज़त के साथ खेल रही हूँ, मेरे माँ बाप को पता चला वो तो मर जाएंगे। दे आर नॉट कंसर्न्ड कि वो खुद क्या महसूस कर रहे हैं, उन पर क्या गुजर रही है। ऑल दे आर टॉकिंग अबाउट इज़ नहीं मैम किसी को पता चल जाए, मेरे माँ बाप को पता ना चले, मैम मुझे बताए मैं क्या करूँ, ठीक। तो दो तरह के वो आ जाते हैं, छोड़ते वो भी नहीं है, कर वो भी यही सब कुछ रहे हैं, लेकिन वो गिल्ट वाली स्टेट में जा रहे हैं। अब ऑब्वियसली वही वाली बात है कि जब बात करेंगे ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है हाउ टू कम आउट ऑफ ऑल दिस। the relationships that you talk about, do you think that there is a role of social media somehow in exposing them to such platforms there where they get to interact with the potential partners? I would say कि internet has speed up the process. That's it. It's not that कि internet से पहले, internet में ये है कि you can get people quickly. इंटरनेट की वजह से you can change your partner, ठीक है, जो आप जिस पार्टनर के साथ आप कर रहे हो, हुकअप कर रहे हो, उसको चेंज करना आसान हो गया है। So by that you mean like the options are more readily available. There is like abundance of options. Yeah. Right. ऐसा नहीं है कि it was not happening before. Now with the help of social media it has become easier for them. और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चा चाहता क्या है, वो इस टीनेजर चाहता क्या है, टू बी हर्ड, ठीक। एंड दैट वो जो टू बी हर्ड और टू बी वैलिडेटेड है, दैट दे आर गेटिंग फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप क्या कह रहा है, वो रिलेशनशिप यही कह रहा है तुम खूबसूरत हो, यू आर बेस्ट,
you are good the way you are, I like this in you, I like that in you. घर So में all आपको that, those validation एग्जैक्टली घर में आपको सुनने को क्या मिल रहा है, तुमसे ये भी नहीं हुआ, यू आर डूइंग दिस. अपना कॉन्शियस क्या कह रहा है, तुम तो बुरी बेटी हो, तुम अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पे पूरी नहीं उतरी, तुम जो हो यू आर गेटिंग इनटू यू नो गुनाह एंड स्टफ. तो अपना आप भी जो है वो आपको क्या कह रहा है कि यू आर अ बैड पर्सन, फैमिली भी कह रही है यू आर बैड पर्सन. नाउ दैट रिलेशनशिप दैट किक्स इन, वो क्या कहता है, वो आपको फील कराएगा कि यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन द वे यू आर. ठीक, अब इसमें जो आयरनी है वो ये है कि जो एजेड मैन है दे हेविली टेक एडवांटेज ऑफ दिस थिंग. द मैरिड मैन टीचर्स जो कि मेल टीचर्स हैं, दे टेक एडवांटेज ऑफ दिस. supervisors, they take advantage of this. I have seen a lot of things जहाँ पे जो family doctors हैं, they take advantage of this. So are you this. saying all this from your personal experience Yes. as a student counselor? Yes. So all these people जो कि actually who are position of authority में हैं, या they are also like closely connected to the families जहाँ पे they have interaction. Exactly. वो वाले जो हैं, now the kid is vulnerable, they are going to, अब देखें, let's understand this, हमें अपने घर वालों की फीलिंग्स के अलावा बाकी सबकी फीलिंग्स समझ आती हैं. Now a 30 years old or a 32 years old for example, it's very easy for him to manipulate an 18 years old girl. ठीक है, ये बहुत, it's very easy. Just if the girl is sitting and the person says you look upset, is everything okay? The person who's sitting वो बहुत ज़्यादा mental trauma से जा रही है, turmoil में से गुजर रही है, and a person hits that stone right in the place that are you okay? This one question. And that girl, obviously she will be like, nobody from the house was able to recognize this, not even my friends, and this guy, he has he just read me. तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ का फ़ायदा जो है, ये जो ये वाला एज ग्रुप है, the aged ones, I have seen girls falling for married men and they are I believe 17, 18 is minor, although when you turn 18 you say that they are independent, but I say 18, 19 they are minors. तो it's very easy to get manipulated at that time. फिर दूसरी चीज़ जो है, again the financial thing. Now a 32 years old person is फाइनेंशियली स्टेबल. यही अगर वो अपने क्लास फेलो के साथ हुकअप करेंगे तो गाड़ी का भी मसला होगा, गाड़ी नहीं मिलेगी, पेरेंट्स से परमिशन नहीं मिलेगी, उस तरह से पैसे भी नहीं होंगे. ठीक है, 32 वाला फाइनेंशियली स्टेबल है, वो आपको अच्छे रेस्टोरेंट में भी लेके जाएगा, वो आपको गाड़ी में सैर भी कराएगा, वो आपको गिफ्टिंग भी करेगा. ठीक है, तो ये वाली टैक्टिक्स उसके लिए आसान होंगी. फिर वो आपकी साइकोलॉजी को समझ सकता है, बिकॉज ही हैज़ बिन थ्रू दैट एज, ही नोज़ योर वीक पॉइंट्स, कि कहाँ कौन से पॉइंट पे जो है फीमेल वनरेबल होगी. फिर ही हैज़ बिन प्लेइंग फॉर मोर देन 10 years और सो. ठीक है, उसने भी 18 साल की उम्र में ये काम शुरू कर दिया था. नाउ बाय द एज 32 he is matured. फिर he is having अब उसकी फैमिली है, और सबसे जो एनिग्मा है वो ये है कि उसकी फैमिली है. he is transparent about this कि I have a family, but I am not in very good terms with my wife. You are the one who completes me. ठीक, and again that good girl syndrome kicks in. और उस लड़की को होता है एंड कि इसकी बीवी तो बहुत बुरी है, he is such a nice guy, why is she being so bad to him? तो मैं तो इसके साथ बहुत अच्छी हूँ. तो वो जो इक्वेशन है ना, वो लव और वो, अब वो क्या है, वो इमोशनल अनमेट इमोशनल नीड्स हैं जो कि एक टीनेजर की हैं, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि वाया पेरेंट्स एंड वाया इंस्टीट्यूशन जो फुलफिल होनी चाहिए थी, जो वैलिडेशन मिसिंग थी, एंड द गर्ल शी इज़ नेमिंग देम एज लव. ठीक, वो वहाँ से पूरी हो रही हैं. ठीक, और ऑब्वियसली द इमोशनल नीड्स व्हेन दे आर बीइंग मेट बाय सच मैन, तो nothing comes free. There is nothing like free lunch. So obviously in return to that they have certain demands जो कि those are being put up in front of those girls, and the girls they fall trap into it. और उसके बाद there are many cases जिसमें जो adverse cases हो जाते हैं, जिसमें blackmailing भी आ जाती है, आपके पास वीडियो लीकिंग भी आ जाती है कि वीडियो लीक हो, मैसेजेस लीक करने का. तो there are a lot of problems associated. फिर बहुत सारी जगहों पे ऐसे है कि जो मेल हैं they have families who run business regarding drugs. ठीक, तो this is a kind of way to trap girls
फॉर द सेक ऑफ ड्रग्स. अब वो क्या होता है कि वो मिलते हैं तो उनको लड़कियों को ड्रगिंग की जाती है, ठीक है. और फिर क्या होता है कि वो फ्री में उनको वो ड्रग्स देना शुरू कर देंगे जस्ट टू गेट देम एडिक्टेड. यस, वंस दे आर एडिक्टेड, ऑब्वियसली दे आर स्टूडेंट्स, उनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है विच दे आर गिविंग. अगर फाइनेंशियली अगर उनका स्टेटस अच्छा है, दे कीप लुकिंग फॉर सच गर्ल्स जो फाइनेंशियली साउंड है. A point comes when she cannot deliver, then they say that now you have to bring other girls into the loop. ठीक, again that cool culture kicks in. She goes and brings, so like it's more like if you bring more people, you still keep getting it for free. But you get money from the others. Yes. तो वो इस तरह से either you give money for it or you bring somebody in it. फिर बहुत ज़्यादा जगहों पे ये है कि टीचर्स जो मेल टीचर्स हैं they have, ये तो बहुत ज़्यादा अब आपने I don't know if you have seen that बहावलपुर यूनिवर्सिटी इंसिडेंट था जिसमें, और वो सारी भी वो यही एज ग्रुप था एंड ऑल दोज लेट गर्ल्स, उनका जो कूल वाला था कि कूल कल्चर था कि दे हैड टू गो टू पार्टीज बिकॉज दे कम फ्रॉम बैकग्राउंड्स जहाँ पे उनको घर से निकलने की परमिशन नहीं है. Once there was a girl जो ग्रुप था, दे वेंट आउट, यू नो इट्स नॉट अलाउड टू गो, जब कॉलेज टाइमिंग्स में यू नॉट अलाउड टू गो आउट इवन इफ़ यू आर अ BS स्टूडेंट, तो आपको अलाउड नहीं है, ठीक है. तो what she did was वो पूरा ग्रुप बाहर गया and they had like भावलपुर यूनिवर्सिटी का no I'm talking about the personal experience. हमारे पास एक ग्रुप आया जो कि basically they bunked the college, ठीक, so it's not allowed. तो we called their parents ना, they went out with a group of guys and they had to you know just for chilling out. There was nothing you know, I would not say this thing that there was something you know very ill involved in it. They just had to go to a hotel or something, restaurant, you know, I won't say hotel, restaurant, और बस हैंग आउट करके उन्हें वापस आना था. बहरहाल they are not allowed, so they were caught at the gate when they came back. तो प्रोटोकॉल ये है that we call the parents and we inform them that like this, सुबह आपके बच्चा आया लेकिन वो कॉलेज के अंदर नहीं आया. The mother said she was sitting in front of me and she said me कि नहीं ये तो कहीं नहीं जाती, हम तो इसको कहीं नहीं लेके जाते. We don't take her to any place and she is always at home and there is no friend of her. कोई ऐसा इतनी frankness नहीं है इसकी दोस्तों से कि उनके साथ कहीं फिरती रहे, हमने तो अलाउ नहीं किया हुआ. And at that point I said her कि अगर आप इसको लेके जाते होते तो आज इसको इस तरह से छुप के जाने की ज़रूरत ना पड़ती. तो हमारे यहाँ पे जो पेरेंटिंग या डिसिप्लिन की फॉर्म में जो आप सफोकेट करते हैं ना, आप कभी भी, आप जितने भी देखोगे कि जो बच्चे जो है वो अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप्स में एंटर होते हैं या ड्रग्स में पढ़ते हैं, दे डोंट कम फ्रॉम द फैमिलीज़ जहाँ पे घर में इन्वायरमेंट्स आर पीसफुल, ठीक, या वेयर दे आर हर्ड, क्योंकि वो उस पॉइंट तक पहुँच ही नहीं पाते, उनके पेरेंट्स उससे पहले. हम और हाँ ये भी जो जितनी हेलीकॉप्टर फैमिलीज़ हैं ना कि जो कहते हैं वी कीप अ हॉक आई ऑन आवर किड्स, उनके बच्चे सबसे ज़्यादा ऐसी इलिसिट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. टॉकिंग अबाउट लाइक जो बहुत ज़्यादा ओवर पेरेंटिंग करते हैं, अपने बच्चों की हर एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व होना है. यस ऑल ऑफ दैट, राइट. सो वो दैट इज आल्सो नेगेटिवली, हाँ, बिकॉज इट सफोकेट्स देम ना, कोई प्राइवेसी नहीं है, मोबाइल के पासवर्ड्स उनके पास हैं, विच इज़ अ काइंड ऑफ थिंग कि ठीक है वो एक डिबेटेबल थिंग है कि आपके पास हो, बट द पेरेंट्स के जो हर चीज़ हु आर लाइक के जो फ़ोन कॉल्स भी सुनते हैं, यू नो, देर आर सर्टन पेरेंट्स. वन ऑफ माई स्टूडेंट्स सेड दैट मैम आई कैन नॉट टॉक टू एनी बडी व्हेन आई एम होम बिकॉज माई मदर शी टेक्स द जो PTCL फ़ोन है वो दूसरी तरफ से उन्होंने उठाया होता है, आई कैन नॉट स्पीक ऑन मोबाइल. PTCL पे मेरी फ्रेंड्स कॉल करती हैं और जो PTCL पे मेरी मदर ने दूसरी तरफ से फ़ोन उठाया होता है एंड शी इज़ लिसनिंग टू एवरीथिंग दैट आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड. तो ये चीज़ जो इतनी ज़्यादा सफोकेशन है, तो उसमें जो है फिर वो जो एक ह्यूमन नेचर है, यू नो, इंस्टिंक्टिवली हम सब हो जाएंगे, you would just like then not want whatever they want. हाँ, एग्जैक्टली. आपको फिर उसके कंप्लीटली ऑपोजिट करना होगा. और इंस्टिंक्टिवली हमारी जो नेचर है ना, हम वी आर मेड टू एक्सप्लोर थिंग्स, ठीक है. और मैं हमेशा इस चीज़ में ये चीज़ ऐड करती हूँ कि हमारा फोकस ये होता है हमारा बच्चा गलती ना करे. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. जिस दिन पेरेंट्स विल एक्सेप्ट दिस थिंग कि हमने अपने बच्चे को, हाँ, हम उस जब वो गलती करता है वो अपनी गलतियों से सीखेगा, वो अपने हिस्से की गलतियाँ करेगा. आवर जॉब इज़ टू बी देयर टू गाइड देम. हम उन्हें ऑल टुगेदर गलती से नहीं बचा सकते. So I'll take you back to one of the points that you made is like again the elderly people trying to exploit younger girls, and you mentioned about, you know, the teachers and, you know, the doctors or जो भी
people who are closer to the family exploiting these younger girls. Tell us a bit about कि in your experience किस किस्म की examples आपने देखी हैं, so that we also, like, the parents who are listening to this, they can also understand and accept the fact that in certain cases their kids might not be safe. There was one student of mine जिसका result मैंने significantly decline होते देखा. She was a good student of mine and she was in pre-medical. So one day I called her and I asked her that what's the problem, why are you declining na? So to which she was quiet and she was crying and I could not get what happened to her. So she told me after that, after a lot of probing and I making her comfortable, अच्छा मैं sorry मैं उसकी तरफ आती हूँ. I always do this thing that I have sessions with my students once a month ताकि they know that they can come to me. तो मैं ऐसी conversation ज़रूर करती हूँ क्लास में ताकि उनके पास उनको पता हो कि they can come to me and they are comfortable. क्योंकि student counselors तो होती हैं लेकिन kids are not comfortable going to them. अच्छा, coming back to the topic, वो the girl, she told me, I asked her that why are you constantly going down? She told me that there is a computer teacher of hers whom she has fallen in love with, and he was also the teacher was in her school. ठीक है, school teacher था, and they had very good chemistry. He was very nice to her, but ever since she has come to college, he has started ignoring her. And that was the point. It was very start of my career, and I was very shocked that how could a teacher do that. And she was like कि अब वो मुझे attention नहीं दे रहा और I don't know what's wrong with me कि maybe I don't look pretty like I used to look before. That is why he is ignoring me and stuff. And I asked her that what kind of relationship did you share with him? To which she said that, ma'am, I had an emotional relationship. I re-questioned, was that just emotional? She stayed quiet. I said, I would want to know. She said, no, ma'am, it was not just emotional. We had some kind of physical relationship as well. और उसमें जो है, and that guy, he had no remorse. He was constantly, telling her, the girl, that you are not capable. तुम्हारे मार्क्स इसलिए अच्छे थे because I was your teacher. I was teaching you. That is why you were excelling. Now you are a loser and you will not be. You won't be able to ace it. And she had internalized that so much in her कि क्योंकि he was the one who was there because she had some problems in her family. She was not told that her father divorced her mother at a younger age, and she got to know that just a year back, and it was very traumatic for her that okay, she had been thinking all her life कि उसके father की death हो चुकी है, but he was actually alive. So she had that certain set of trauma from the house, in which that guy, the teacher, who took advantage of that, and they were into a relationship. और ज़ाहिर है when she came to college, he was not having access to the physical needs that she was fulfilling for him, and obviously she was of no use. So he started demeaning that girl. और वो अब question करती कि he is a nice guy. This is what she told me, that he is a nice guy. I don't know what's wrong in me that he is ignoring me. तो इस तरह के केसेस फिर डॉक्टर्स का ये कि जैसे फैमिली डॉक्टर्स हैं, you have doctors in your family, you keep going to them. Somebody who's sitting and seeing a girl coming time and again, one student of mine, you see that you start throwing signals to that. And let's accept this thing that younger girls are also attracted towards guys who are mature in age because they think that they are maturer. ठीक, तो ये मेच्योर हैं, इनके साथ जो है वो रिलेशनशिप को हम आगे लेके जा सकते हैं. ठीक है, दे अपने क्लास फेलोज़ और अपने एज फेलोज़ के बारे में एक नॉर्मल ये होता है कि ये फ्लर्ट कर रहा होगा. तो जो ज़रा सा बड़ा है तो जाहिर है वो डिसेंसी में भी जो है वो छोटे वाले से बेहतर होगा, फाइनेंशियली भी बेहतर होता है, बात करने में भी बेहतर होता है. तो वो एक जो इन्फैक्चुएशन है वो क्रिएट होती है. फिर ऑब्वियसली द सोशल मीडिया थैंक्स टू इट, वहाँ से वो कम्युनिकेशन डेवलप होना, फिर हर विज़िट पे एक वो जो एड्रीनलिन रश है, आप मिल रहे हो, वो चीज़ें, बट दैट बैकफायर्स बाद में ऑब्वियसली. एंड गाइज, आई हैव सीन इन दीज केसेस, गाइज आर वेरी ट्रांसपेरेंट दैट वी हैव अ फैमिली, सो नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड.
ठीक. एंड द पेट जो होता है सेंटेंस वो ये होता है कि आई एम नॉट एबल टू, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू डू दिस, this is so against Islam, but I can't stop myself from being in love with you. This is the pet statement. आप जितने मर्जी इस तरह के relationships उठा लें वो सब religious guilt देते हैं. Why? Because that is an easy exit. जब भी वो बोर होते हैं उनको उसमें से निकलना है, दे विल से कि नो नाउ आई हैव रियलाइज दैट आई एम डूइंग अ बैड थिंग, आई कैन नॉट बी बैड टू यू, मैं तुम्हारे साथ भी ज़्यादती कर रहा हूँ, मैं रिलीजन के साथ भी ज़्यादती कर रहा हूँ, बीवी के साथ भी ज़्यादती कर रहा हूँ, सो सॉरी आई एम साइनिंग ऑफ. एंड वेन एवर दे फील लाइक I have to come back or they are bored and they want you back, they would be like, but I cannot stay without you. I tried a lot, but still you keep coming back to my mind and stuff. So this is, and that is the worst form of abuse, I must say, that जिसमें you manipulation, and you are making the girl feel guilty कि the girl is feeling this कि मैं किसी का घर ख़राब कर रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ बुरा कर रही हूँ, मैं एक मैरिड आदमी के पीछे जा रही हूँ, मेरी सेल्फ इस्टीम भी जो है वो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, वो खुश है, तो द ओनस इज़ ऑन द गर्ल. और रीज़न क्या है कि शी इज़ नॉट हैविंग दैट कम्युनिकेशन विद समबडी जो कि फ्रॉम द फैमिली, पर्टिकुलरली विद द पेरेंट्स, क्योंकि इस एज के बच्चों के जहन में एक ही चीज़ है, हमने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखना है, दैट इज़ इट. दिस इज़ द ओनली कम्युनिकेशन आई हैव सीन पेरेंट्स हैविंग विद देयर टीनेजर्स. बेटा हमारी इज़्ज़त का ख्याल रख लेना, दैट इज़ इट. दे विल नॉट टॉक अबाउट कैसे रख लेना, अगर इज़्ज़त का ख्याल रखने में मुश्किल पेश आ रही है तो हमारे पास आ जाना, हम तुम्हें हेल्प कर देंगे. नोबडी टॉक्स अबाउट इट. ऑल द टॉक इज़ इज़्ज़त का ख्याल रखना तुम पे है, चाहे तुम खुदकुशी करके उसका ख्याल रख लो, चाहे दे डोंट से इट, बट टेल मी इफ़ अ पर्सन इज़ थ्रू सो मच और उसको इस चीज़ का खौफ हो जाए कि मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा, या वो मेरे पास स्टूडेंट आती हैं, जैसे इफ़ वी एट टाइम्स होता है जैसे आप किसी के फ़ोन में से कोई इस तरह की एक्टिविटी, ऑब्नॉक्शियस एक्टिविटी मिल जाए, या समबडी इज़ गोइंग आउट विद समवन, इस तरह के केसेस आते हैं हमारे पास, तो द फर्स्ट थिंग इज़ मैम आप जो मर्ज़ी कर लें, आप मार दें, जो भी कर दें, मेरे पेरेंट्स को ना बताइएगा, मैम वो मर जाएंगे, मैं वो मार देंगे. को एक्सप्लॉइट करते हैं ऑल एग्जैक्टली, यस, और दे आल्सो प्रॉब्ली लाइक ब्लैकमेल, एग्जैक्टली. वो नॉर्मली वही होते हैं जिनको उनको पता होता है कि देयर रिलेशनशिप विद द फैमिली इज़ वीक एंड वनरेबल. इट्स ईजियर टू गेट अवे विद सच गर्ल्स, एंड इट इज़ ईजियर टू मैनिपुलेट देम एज वेल, और ब्लैकमेल. और एंड ऑनेस्टली ज़्यादातर जो फॉल ट्रैप फॉर सच थिंग्स वो वहीं पे होती हैं जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं या तो उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है या वो एब्सेंट होते हैं एब्सोल्युटली फ्रॉम द स्टोरी, कि वो उनका मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि पेरेंट्स का जो रोल है फादर का फैमिली में वो क्या है, हमारे यहाँ पे ये है कि ही विल अर्न, दैट इज़ इट, ख़त्म, रोल ही ख़त्म हो गया. उसके बाद मदर का रोल क्या है, सुबह नाश्ता देना है, दोपहर का खाना देना है, रात का खाना खिलाना है और कपड़े ख़रीद के देने हैं. ठीक, दिस इज़ व्हाट नॉर्मल रोल इज़ फॉर द, हाँ, जेंडर रोल्स, एंड दैट इज़. और फिर क्या है कि जी मदर ने अगेन द फैमिली सिस्टम्स जो हमारे हैं, मदर ने सबका ख्याल रखना है, उसके पास बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है. ठीक है, शी इज़ नॉट इन्वेस्टिंग इन द किड्स. वो बड़े ही छोटे, अब उसमें ये भी एक मसला आता है कि जो पेरेंट्स हैं दे आर पेरेंटिंग देयर पेरेंट्स, क्योंकि उनके अपने पेरेंट्स मैच्योर नहीं हुए तो वो उनको पेरेंट कर रहे हैं. अब यही बच्चे जब पेरेंट बनेंगे इनको अपने पेरेंट्स, तो यहाँ पे उल्टा चल रहा है. इंस्टेड ऑफ पेरेंटिंग द किड्स या द टीन्स दैट आर कमिंग, पीपल आर पेरेंटिंग देयर पेरेंट्स. ठीक है, उनके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर रहे हैं कि तुम आज मेरे पास नहीं बैठे, तुमने आज थिंग्स लाइक दैट. तो पेरेंट्स, मैं बहुत वीक हूँ, मैं आई एम इमोशनली वीक, आपके पास पेरेंट्स हैं जो अपना बैगेज लेके आ रहे हैं कि अच्छा नहीं मुझे ये बात मत बताओ. तो बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से इसलिए भी बात नहीं करते कि अगर हमने ये बात की तो हमारे पेरेंट्स बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे. तो ये एक बहुत बड़ा जो है, मतलब ये बहुत सारे रीजंस हैं अपने जो है वो शेल से बाहर ढूंढने का. बहुत कम आपको ऐसे मिलेंगे कि जो सिक्योर एनवायरनमेंट से बच्चे आते हैं जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत आगे तक जाते हैं. So I'll take you back to the point that you made about like absence of a parent, especially the father. I'm sure having absence of mother as well, would that also brings its own disadvantages. Lekin I was reading Dr. Jordan Peterson on this कि there should be forced marriages. Forced marriages का वो इसलिए कहते हैं कि by any metrics, a child who's raised in a single parent household cannot outperform
than somebody who is raised by both parents. तो ये भी, and then I was having discussion with one of my mentors actually, and he mentioned that if you have even if you don't have like your parents there for you, but if you have your grandparents or anybody closer to you in the family, if you get love from them, it is equally good for you. It is as good as you're getting love from parents, because all you need is to feel that you're wanted. तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करती हूँ. एक तो फोर्स मैरिजेस, ठीक है, वो फैमिली सिस्टम को द बेस्ट केस सिनेरियो इज़ दैट व्हेन बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्वड इन पेरेंटिंग. बट द थिंग इज़ कि द रीज़न ही मस्ट हैव सेड दिस इज़ कि आप एक लविंग इन्वायरमेंट में चाइल्ड को जो है वो उसका ब्रॉटअप कर रहे हैं. बट व्हेन द अदर पार्टनर इज़ टॉक्सिक इनफ कि वो उस इन्वायरमेंट, अब आप देखें, यू मस्ट हैव हर्ड एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस कि अगर एक बीज है, जैसे आपने उसको मिट्टी में लगाना है, ठीक, बीज कितना भी अच्छा हो, मिट्टी अगर अच्छी नहीं होगी तो बीज नहीं उगेगा, ठीक है. तो इट्स लाइक वाइज कि आपने इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में बच्चा मौजूद है, अगर वो मतलब दोनों पेरेंट्स के साथ रह रहा है बट द इन्वायरमेंट इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक, तो it is of no use. Right. Such parent should be absent from the kid's life. The toxic or the traumatic parent should be absent from the kid's life. Right. So by that you mean like then in that case it's better कि rather than forcefully keeping the marriage intact, it's rather better कि वो better कि आप उसको जो है वो separate हो जाए. Even in any case like the kid is going to suffer. Exactly. In either case. In either case, kid will suffer even if he is staying with the with both parents, or if he is staying, let's say in our culture जैसे with the mother. Suffer तो वो दोनों सूरतों में करेगा. अगर if there is a dysfunction. Yeah, if that's a dysfunctional family. नॉर्मली सेपरेशन तभी होती है जब थोड़ी सी डिसफंक्शनैलिटी आ जाती है. अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि जब आपकी सेपरेशन हुई है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बोथ पेरेंट्स, दैट ऑल्सो डिटर्मिन्स कि आपका बच्चा जो है वो उसकी क्या जो है वो नीड्स होंगी. क्योंकि जैसे आपने कहा कि फादर इज़ ऑल्सो नीडेड, मदर इज़ ऑल्सो नीडेड, बट अ हेल्दी फादर एंड हेल्दी मदर इज़ नीडेड. जो सेपरेशन होती है अनफॉर्चुनेटली उसमें पाकिस्तान में व्हाट आई हैव सीन इज़ दैट इट इज़ वॉर ऑफ ईगो. बच्चे जो हैं वो नज़र हो जाते हैं ईगो की वॉर में, और ऐसे बच्चे ज़्यादा वनरेबल हैं, ठीक है, जो सिंगल पेरेंट के साथ है. नॉट बिकॉज दे आर विद अ सिंगल पेरेंट, बट बिकॉज दे आर अ पिंग पोंग बिटवीन बोथ पेरेंट्स, ठीक है. हर पेरेंट ये प्रूव करने में लगा हुआ है, ठीक है. द मदर वॉन्ट्स द किड टू एक्सेप्ट कि उसका बाप बुरा था, ठीक है, एंड द फादर वो ही वॉन्ट्स टू प्रूव कि उसकी मदर बुरी थी. अब नोबडी इज़ थिंकिंग अबाउट द चाइल्ड कि उसके लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ जितना मर्जी बुरा बाप था, जितना मर्जी बुरी माँ थी, वो उसके रिलेशंस है. So इसमें अगेन लाइक कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इट अ बिट कि जो इफ यू आर हैविंग अ डिसफंक्शनल फैमिली और आप द बच्चा जो है वो पिंग पोंग है, तो क्या लाइक कैन यू जस्ट शेयर अ बिट मोर ऑन दिस कि जो आप नेगेटिव परसेप्शन देते हैं बच्चे को दूसरे पेरेंट के बारे में, हाउ इट नेगेटिवली अफेक्ट्स द किड. अच्छा, अब बच्चे के लिए तो आप भी वही हैं और फादर उसके लिए दोनों, अनलेस कि उसने बहुत ज़्यादा बहुत ही हाइट पे उसने जो है वो देखी है यू नो द अब्यूज़, अदरवाइज़ उसको अपने बाप से भी मोहब्बत है, उसको आपसे भी मोहब्बत है. मैं मदर के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ. आई बिलीव यू शुड बी ट्रांसपेरेंट. आप यू शुड टेल योर किड के आई फील दिस इज़ दिस इज़ हाउ यू शुड कम्युनिकेट. I feel your father has wronged me. ठीक है. Likewise, the guy should say that I feel your mother has wronged me in this and this case. You have to be transparent. But at the end of the day, I will not let my relationship with him affect your relationship with him. Your equation is different from my equation. ठीक है. कि यानी मेरा तो you know me and my husband, we are not related by blood, but you are related to your father by blood. So you don't have to make a relationship with your father based on my relationship with him. This is important. ठीक. If you want to co-parent, ठीक है, ये उस केस में मैंने ये देखा है कि जो co-parenting है पाकिस्तान में, it is creating disastrous kids. ठीक है. Kids with you know always with low self-esteem, hiding,
इंटिमिडेटेड किड्स, क्योंकि वो माँ के पास जाते हैं तो वो बाप की बुराई करती है, वो उससे छुपते फिरते हैं, बाप के पास जाते हैं वो माँ की बुराई करता है, उससे छुपते फिरते हैं। दे आर ऑल द नेगेटिविटी इज़ बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय देम। उनको अच्छी बात तुम्हारे बाप ने, एंड यू नो द टॉक, इट्स लाइक तुम्हारे बाप ने ये किया था मेरे साथ, तुम्हारी माँ ने ये किया था मेरे साथ। तो वो चीज़ जो है वो इतनी डेट्रामेंटल है। देन अगेन दे स्टार्ट फाइंडिंग थिंग्स टू सूद दैम, जिसमें ड्रग रेशो सबसे ज़्यादा इस तरह के बच्चों में होता है, जिसमें वो पिंग पोंग है कि पेरेंट्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को ब्लेम गेम कर रहे हैं, चाहे वो साथ भी रह रहे हैं उसमें भी जब वो अब्यूजिव हैं एक दूसरे की तरफ, इन अ वे के दे आर मेकिंग चाइल्ड द जज, कि तुम फैसला करके बताओ, टेक वन साइड, या तो बाप की साइड लो या मेरी साइड लो। तो वो वाले बच्चे जो है ना वो उन पे ये एक एडेड ट्रॉमा है कि उनको जज बन के ये कहना है अपनी अम्मा को कि जी मेरा बाप गलत था, या बाप को कहना है जी मेरी अम्मा गलत थी। तो इस लिहाज से तो कोर्ट सिस्टम भी जो हमारा है दैट इज ऑल्सो फ्लॉड, बिकॉज लाइक जब आप गार्डियनशिप के जो केसेस होते हैं उसमें अल्टीमेटली बच्चे से पूछा जाता है कि आपने माँ के साथ रहना है या बाप के साथ रहना है, सो दैट इज नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ लाइक जस्टिस टू द किड। उसमें अब ये मुझे ये लगता है कि द रीज़न बिहाइंड वो चाइल्ड की वेलफेयर इज़ ऑलवेज द प्रेफरेंस, विच अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से होता नहीं है। मेरी एक थी स्टूडेंट जो अपने फादर, जिसके फादर हु फॉट फॉर दी विजिटेशन राइट्स, उसकी शी वॉज नॉट अलाउड टू मीट हर फादर, बट वॉट हैपन वॉज कि उसको इतना ज़्यादा नेगेटिविटी जो थी फ्रॉम हर मदर, इट वॉज दैट वॉज सो डीप रूटेड इन हर दैट जब वो छोटी थी शी स्टार्टेड डिस्पाइजिंग हर फादर। और जैसे शी मेट हर फादर, दिस इज़ वॉट शी टोल्ड मी कि मैं अपने बाप से जब मिली तो आई अब्यूज्ड हिम, मैंने उनको कहा कि यू आर अ बैड पर्सन, एंड दैट वॉज द लास्ट डे व्हेन माई फादर मेट मी, ही डिडंट कम आफ्टर दैट। ठीक, एंड एट दैट पॉइंट शी वॉज 17 years old and she said that, and I regret that day. I wish I had not said him that because he was good to me. And that literally broke me कि कभी कभी हम अपनी ईगो की जंग में अपने बच्चे का कितना नुकसान कर देते हैं, क्योंकि obviously she had been told constantly, she was 9 or 10 years old by that time. तो ये चीज़ जो है इस तरह से जो आप वो बात कर रहे थे उनकी, तो मैं उसमें ये कह रही थी कि फोर्स मैरिजेस जो हैं उनमें ये है कि आप इन्वायरमेंट क्या दे रहे हो, इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपने जो बात की कि दादा दादी नाना नानी का प्यार कैन नॉट रिप्लेस द लव ऑफ अ मदर और फादर अनलेस दे आर द प्राइमरी केयर टेकर्स। If your mother is not present and your maternal grandmother या paternal grandmother, she takes your wholly solely responsibility, तब that love वो फिर वो मदरहुड में आ गई हैं, ठीक है। बट व्हेन योर मदर इज़ प्रेजेंट एंड शी इज़ गिविंग यू द लव एंड योर मदर इज़ नॉट गिविंग यू द लव, यू विल ऑलवेज फील दैट वॉइड। तो वो ग्रैंड पेरेंट्स अगर प्राइमरी केयर टेकर्स है देन इट विल हेल्प, वरना एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ पूरी दुनिया नहीं है, आपके साथ आपका एक पेरेंट मौजूद है। और उससे मेरी मुराद ये नहीं है जैसे हम कहते हैं मैं तुम्हारे साथ खड़ी, वो नहीं, इमोशनली आपके साथ आपका पेरेंट कनेक्टेड है, एक पेरेंट, यू आर डन फॉर योर लाइफ, मतलब यू आर सॉर्टेड, आप जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकते। ऑल दीज थिंग्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, इसमें व्हाट डू यू थिंक कि जो पेरेंट्स हैं उनको किस किस्म का पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए? क्या बहुत ज़्यादा ओवर पेरेंटिंग है जिस तरह वो आपने मेंशन किया उसका नुकसान है, अगर बहुत ज़्यादा आप लेवरेज देंगे बच्चे को, बहुत खुला छोड़ देंगे उसका भी नुकसान है। तो एग्जैक्टली जो पेरेंट्स हैं उनके लिए what exactly should they do to make sure that they are providing that safety net to their kids? One word answer is transparency. Transparent in the relationship, transparent about themselves, talking about their own vulnerabilities. वो खुद इस एज में थे, मैं हमेशा ये एग्जांपल कोट करती हूँ कि मेरा बेटा चाय का कप था और उसके पास पेस्ट्री थी एंड ही आस्क्ड मी कि मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं ये ना पेस्ट्री इसके अंदर डाल दूँ, ऐसा क्यों है? सो आई सेड बिकॉज यू आर टू यंग टू कंट्रोल योर इम्पल्स। तो छोटे बच्चे हैं उनको ऐसा ही महसूस होता है, उनका ऐसे ही दिल करता है कि हम ना डिस्ट्रक्टिव काम करें। टू विच ही आस्क्ड आपका भी करता था दिल? आई सेड हाँ मेरा भी करता था। एंड ही आस्क्ड मी फिर आप क्या करती थी? एंड जस्ट बिफोर आई कुड आंसर ही सेड आप छुप छुप के कर लेती थी। तो इट यू अंडरस्टैंड, एंड व्हेन आई सेड येस दैट फिल्ड हिम विथ सो मच प्लेजर कि मेरी मदर जो है she is a good person for him, I am a very good person, I am his ideal, तो मेरी अगर ये भी इस तरह के काम करके यहाँ तक पहुँच गई हैं तो I will also reach there,
यू गॉट दैट. तो हमारे यहाँ पे वो जो परफेक्ट पिक्चर है ना कि आई हैड अ परफेक्ट चाइल्डहुड, परफेक्ट टीनेज, उस चीज़ को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़. दूसरा ये एक्सेप्टेबिलिटी. आपका बच्चा आपके पास आके कह रहा है कि मेरे अंदर जो है वो फिजिकल अट्रैक्शन डेवलप हो रही है फॉर अ बॉय, ठीक है. तो यू नीड टू एक्नॉलेज दैट थिंग कि दिस इज़ वॉट योर एज इज़, योर फिजियोलॉजिकल चेंजेस विल लीड टू दिस, ठीक है. बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को, और शेम ना करना, ठीक है. तुम क्या, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पेरेंट्स जो है वो, मैंने सबसे हर बात तरबियत पे आ जाती है, मैंने तो तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की थी, फिर ये कैसे हो गया, ठीक है. कोई स्कूल से कॉलेज से शिकायत आ रही है जैसे हम करते हैं, तो वहीं पे बैठी मदर्स कह रही होती है बेटा मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई थी, ठीक. अगर आप अपने बच्चे में इस तरह का बिहेवियर देखते हैं, जैसे ये लुक कूल वाला कल्चर है, अब इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है कि अब पीपल आर फ्लॉन्टिंग ऑफ देयर कार्स. तो आपके घर में अगर ट्रांसपेरेंट टॉक होगी इस चीज़ के बारे में कि इट्स ओके. अब जैसे मेरे बेटे ने मुझसे एक दफ़ा पूछा कि एक बड़ी गाड़ी है सोरेंटो, उसका पूछा कि हमने वो गाड़ी क्यों नहीं ली. आई सेड क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक. माई चाइल्ड इज़ 5 years old, ठीक है. तो वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन. ही सेड मैंने कहा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती. मैंने किसी जगह ये बात की तो उसने मुझे, एक लेडी मुझे कहती हैं कि आप अगर पैसा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में, तो आपने उसको ये क्यों नहीं कहा कि जो मेरी गाड़ी है वो ही इतनी अच्छी है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है. आई सेड वाई शुड आई लाई टू हिम. अगर तो मेरी गाड़ी उस गाड़ी से कंपेरेबल होती, ठीक है, जस्ट लाइक दिस कि अगर iPhone 15 और iPhone 15 Pro Max में से मुझे चूज़ करना है, तो मैं कहती बेटा मुझे 15 पसंद था इसलिए 15 Pro Max नहीं लिया. बट अगर iPhone 15 Pro Max और iPhone 5 है, तो आई कैनॉट से दिस थिंग कि मुझे iPhone 5 पसंद है. यू गेट माई पॉइंट. तो आई हैड टू टेल हिम. और दूसरा मैंने कहा कि ज़िंदगी में मेरे बच्चे को हमेशा बेस्ट चीज़ नहीं मिलेगी, एंड इट इज़ ओके, यू कैन बी हैप्पी इवन इफ़ यू डोंट हैव द बेस्ट थिंग. तो ये वाली कॉन्वर्सेशंस अपने बच्चों के साथ होना कि इवन इफ़ यू आर नॉट. अब ये है कि ये आपके घर का माहौल होगा. जब आपके घर में ये बातें इतनी नॉर्मल हैं कि फ़लाने बंदे के पास बड़ी गाड़ी है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, हम वो गाड़ी अफोर्ड अभी नहीं कर सकते, बट वॉट एवर कार वी आर हैविंग, हमारा इट्स सर्विंग द पर्पस. तो ये वाली कॉन्वर्सेशंस जब आपकी नॉर्मली हुआ होंगी, आपका बच्चा कॉम्प्लेक्स फील कर रहा है और वो आपसे आके बात कर सकता है, और आप इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करते हैं कि ठीक है. बहुत दफ़ा ऐसा होता है. अब आई ऑल्सो सेड हर दिस थिंग कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ज़रूर वही गाड़ी लेती. मनी इज़ दैट कंस्ट्रेंट कि अगर मेरा वो कंस्ट्रेंट ना होता तो मैं वो गाड़ी ले लेती, ठीक. तो ये चीज़, ये बात जब पेरेंट खुद अपने बच्चे से करेगा कि ये हमारा मसला है, अगर हम और कमाएंगे हम ले सकते हैं, ठीक है, व्हेन वी आर अर्निंग दैट मच, एंड इट्स ओके नॉट टू बी द बेस्ट, ठीक. हमारे पेरेंट्स अपने आप को बेस्ट पोर्ट्रे करना चाहते हैं, अपने बच्चों को दुनिया के सामने बेस्ट पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि आपसे अच्छा कोई नहीं होना चाहिए. तो ये जो प्रेशर है व्हेन दे विल लिफ्ट दिस अप और उनका बच्चा उनसे आके ये बात कर सके. फिर हमारे बहुत बड़ा मसला ये है, मैं अगर ये कहूँगी कहीं गई हूँ, इफ़ आई एम 16 years old एंड आई गो एंड आई सी सम गर्ल एंड आई से वो तो इतनी खूबसूरत है, उसके इतने लंबे बाल हैं, ठीक है. तो क्या होता है, पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने आंखें तो दी हैं, कान तो दिए हैं, नाक तो दिए. दिस इज़ वेरी रॉन्ग. आप जेलस फील कर रहे हो, आप उसको एक्नॉलेज करो, को हाँ उसके बाल वाकई में बहुत प्यारे हैं, ऐसे बाल हो तो बंदे मज़ा आ जाए. अब क्या है, वो जो फीलिंग है या वो इमोशन है, वो आपका बच्चा आपसे आके अपना इमोशन डिस्कस ही नहीं करता, क्योंकि उसको होगा कि मैंने अगर अपना इमोशन बताया मुझे तो एक लंबा सा लेक्चर मिल जाएगा, तो उससे बेहतर है बात ही ना करो. तो वो डायलॉग होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो उनके अनवांटेड इमोशंस हैं या जो कि ऐसे हैं जो आपको एज सोसाइटी लगता है कि ये इमोशंस नहीं होने चाहिए, विच इज़ दैट्स अनदर डिबेट, बट विच इज़ क्वेश्चनेबल कि क्यों नहीं होने चाहिए इमोशंस, ठीक है. आप जब उनको एक्सेप्ट करोगे तभी वो आके आपसे अनकम्फर्टेबल टॉक कर सकेगा. आपकी अनकम्फर्टेबल टॉक जब तक कंफर्टेबल नहीं होगी, घरों में अनकम्फर्टेबल टॉक्स नहीं होंगी कंफर्टेबल, बाहर वाले लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे. What do you think, like what is the role of education in this? क्योंकि like we don't have as such sex education in schools. So वो जो सारी हम बात करते आए हैं कि you know lack of knowledge about things, जो बच्चों के पास knowledge नहीं होता, information नहीं होती है, कितनी ज़रूरत है हमारे करिकुलम के अंदर to give this awareness generally? मैं इसकी सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ. द मोस्ट पायस बुक दैट वी टॉक अबाउट इज़ कुरान. अगर कुरान में सेक्स नॉलेज है तो वाई इज़ आर करिकुलम नॉट हैविंग दैट, ठीक.
दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू द, हम तो ये कहते हैं ना कि हम मजहबी लोग हैं, हम ऐसी बात नहीं करते. नो, दिस इज़ नॉट व्हाट आवर रिलीजन सेज. हमारा रिलीजन तो कहता है एजुकेट करो. ठीक है. व्हेन दे आर नॉट गेटिंग द एजुकेशन थ्रू राइट वेज, ठीक है, तो वो रॉन्ग वेज से एजुकेशन ले रहे हैं. आपको पता है VPN लगाते हैं, किस तरह की साइट्स हैं जो टीनेजर्स जो हैं जिनको जो विजिट करते हैं, या जो हमारी सोसाइटी. आप वैसे भी उस दिन मैं दुरे फिशा का इंटरव्यू देख रही थी जिसमें शी सेड दैट द मोस्ट सर्च क्वेश्चन अबाउट मी वाज दुरे फिशा हॉट पिक्स. ठीक. तो ऑब्वियसली जो वो एक गैप है स्टूडेंट्स को नहीं बता रहे, बल्कि अभी ओ माई गॉड 2 भी आई है एक, इट वाज रिलेटेड टू सेक्स एजुकेशन. आई ऑलवेज टेल एवरीबडी टू वॉच दैट मूवी, जिसमें वो बच्चा कॉन्स्टेंटली वो अपने पेरेंट के पास भी आता है कि एजुकेट मी ओवर दिस, वो अपने टीचर्स के पास भी जाता है, नोबडी इज़ रेडी टू एजुकेट. तो फिर ऑब्वियसली ही टेक्स द रॉन्ग रूट. तो यू नो, तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्लासेस में, अपने स्कूल में ये बातें करें, क्योंकि जब तक आप अपने स्टूडेंट को खुद एजुकेट नहीं करेंगे तो जो प्रेडिटर्स हैं वो तो इंतज़ार में बैठे हैं कि हमारे पास ऐसे वनरेबल बच्चे निकलें हु आर नॉट हैविंग द राइट नॉलेज, हम उनका एडवांटेज उठाएं और उस चीज़ को जो है वो हम अपने लिए मतलब कैश कर सकें. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपकी हो सकता है कि आपकी पॉडकास्ट के नीचे भी गालियाँ लिखी गए. मैं भी बैश हूँ इस चीज़ पे कि हम जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हम ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन हमें ऐसी बातें करनी चाहिए, क्योंकि जब ये बातें आएंगी फ्रॉम योर टीचर्स, फ्रॉम योर पेरेंट्स, ठीक है, तो दे विल ब्रिंग विजडम. ठीक. आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से, मसाइल तो हम सबको पता है, लेकिन उनको हल कैसे करना है, उन तक पहुंचना कैसे है, जब तक पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ पे वर्क नहीं करेंगे. और वो अगेन इट कम्स टू, अब मसला ये है कि हमारे सोसाइटी एज होल इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है. ठीक है. कोई भी बात है, अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, तो पेरेंट विल स्टार्ट लुकिंग पेरेंट्स विल स्टार्ट लुकिंग देमसेल्व्स एज अ फेलियर. ठीक. बजाय इसके कि वो ये देखे कि क्यों अच्छा फील नहीं कर रहा, वो एक इमोशनल शुरू हो जाएगा, मैंने कौन सी कमी रख दी तुम्हारी ज़िंदगी में, मैंने तो सब कुछ किया. तो ये एक बड़ा जो है ना वो अलमिया है कि हमारे जो है ना इमोशनल इंटेलिजेंस, तो सेक्स एजुकेशन से पहले आई बिलीव इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि इंटेंट कितनी भी अच्छी हो, अगर आगे कॉम्प्रीहेंशन नहीं है ना, एजुकेशन की कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, तो वो आप और मैं जितनी मर्ज़ी अच्छी बात कर लें, वो आगे कन्वे नहीं हो पाएगी. ठीक है. उसमें से वो चीज़ें जो है वो मतलब उनको निट पिक करके तो उनका रॉन्ग मीनिंग लिया जाएगा. तो आप जब इमोशंस को एक्सेप्ट करेंगे, इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, चीज़ों को देख सकेंगे, फिर आप अपने बच्चे के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए लाइफ को नेविगेट करना आसान हो जाएगा. एंड व्हाट मैसेज वुड यू गिव आउट टू सिंगल पेरेंट्स, बिकॉज लाइक वी हैव एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ सिंगल पेरेंट्स, and I'm sure like a lot of them are not aware of this thing, how to tackle their kids. So any message that you would want to give out to them? First thing, focus on your mental health, work on it. ठीक. दूसरी चीज़ ये कि अपने बच्चे को एज एन इंडिविजुअल देखें. ठीक है. उसको ये इस अना की जंग जो है, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि अना की जंग, आपके साथ द पार्टनर हैज़ रॉन्ग्ड यू, there are no two doubts about it, that is why you decided to part your ways. ठीक है. but not necessarily that person has wronged your kid. ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि अपने ट्रॉमास का बोझ आप खुद उठाएंगे, आप अपने बच्चों में वो ट्रॉमास शिफ्ट ना करें. क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों, अगर इफ़ यू वांट सेन एंड हेल्दी किड्स, तो पहली चीज़ तो ये कि आपको अपनी इमोशनल हेल्थ पे वर्क करना पड़ेगा. मैं एक और भी पॉडकास्ट में बात कर रही थी कि आपका जब रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, ये चीज़ तो आपने एक्नॉलेज की कि सामने वाले बंदे से ये गलतियाँ हुई, ये ज़्यादतियाँ हुई. आपका अपना रोल क्या था उस रिलेशनशिप में, आप उसके लिए भी अकाउंटेबल हो. उसके बारे में भी सोचना ज़रूरी है कि मैंने अगर ये ऐसा नहीं है कि अगर आप वो चीज़ें सही करते तो आपका रिलेशनशिप जुड़ा रहता, मोस्ट लाइकली वो तब भी टूटता. बट द थिंग इज़ दैट विल गिव यू योर इनसाइट कि आप खुद क्या हो. ठीक. जब आपको ये पता होगा, हमारे यहाँ पे लोगों को अपने बारे में ही पता नहीं है. मैं अगर पूछूंगी ना किसी से कि आपका गुस्सा कैसे मैनिफेस्ट होता है, वो नहीं बता सकते. उनको पता ही नहीं है कि उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है जब गुस्सा आएगा, जब खुशी होती है, या कोई भी इमोशन है. तो जब आप खुद को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं,
फिर ही आप अपने बच्चे को अंडरस्टैंड कर सकेंगे और आप अपनी उस ईगो वॉर से बाहर निकलेंगे. मैं हमेशा कहती हूँ पेरेंट्स को जो सेपरेट होते हैं, जो नहीं होते मैं उनको भी कहती हूँ, और जो सेपरेट होते हैं स्पेशली, प्लीज़ टेक थेरेपी. प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है. आपके लिए तो ज़रूरी है, आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है. और इस तरह के जो बच्चे हैं दे आर अनहर्ड, उनकी थेरेपी भी बहुत ज़रूरी है. उनकी थेरेपी डजेंट वो नेसेसरली हम वो अब आई होप अब वो टैबू टूट जाए कि पागल ही साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. एवरीबडी ऑफ अस वी नीड गुड पीपल इन आर लाइफ, जो कि हम जिनसे टाइम एंड अगेन बात करें, बेशक वो लाइफ कोच हो, कोई भी sometimes just like somebody neutral who can listen to you and who can just guide. Actually what happens is like I think with mera personal experience here, when you talk to a psychologist, he or she only helps you to regulate your emotions. Exactly. And try to sort of like make you think clear, right? तो वो बहुत ज़रूरी है. लाइक अगर कोई प्रोफेशनल थेरेपिस्ट ना भी हो, to have somebody who's credible, who you can talk to, who can help you to think who's more not clearly. emotionally attached to you. Yeah. That is important. क्योंकि वो फिर जो ओपिनियन है ना वो बायस्ड हो जाते हैं. और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी कि आपका जो ट्रॉमा है, आपके ब्रेन में चीज़ें जो हैं वो एक्यूमुलेटेड है, यू हैव टू टेक देम आउट. अच्छा, अब दैट इज़ अ पेनफुल प्रोसीजर. नॉर्मली लोग नहीं करना चाहते एंड दे डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स कि अगर आपको कुछ मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा, शॉपिंग चले जाओ, खाना खा लो, ठीक है. पीपल डोंट सिट विद देयर फीलिंग्स, दे डोंट प्रोसेस देम. उससे क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक इस कमरे में अगर जो है वो गंद पड़ा हुआ है एंड सम गेस्ट आर कमिंग ओवर, आप क्या करो, उसको कारपेट के नीचे कर दो या इस टेबल के नीचे कर दो. अपेरेंटली तो इट हैज़ गॉन बट इट्स देयर, ठीक. और आपको वो एफर्ट करनी पड़ेगी इसको यहाँ से निकालने के लिए. यू विल हैव टू डू दैट एफर्ट. यहाँ पे पीपल आर नॉट विलिंग टू डू दैट एफर्ट. और उसकी वजह से क्या होता है, वो इतना पाइल अप होता जाता है कि इतना गंद हो जाता है कि वो फिर निकालना उसको, वो इतना मैस है कि उसको ख़त्म करने में शायद पूरी ज़िंदगी लग जाती है. तो जो आपके ट्रॉमाज हैं, प्लीज़ वर्क ऑन दैम फॉर योर किड्स, फॉर योर जनरेशंस टू कम, बिकॉज इफ़ यू विल नॉट वर्क ऑन दैम, unfortunately they will have to. Thank you so much, Amna. It was really nice talking to you, and I really hope ke all these things that we have talked about, I really wish के लोग इन चीज़ों के ऊपर अमल करें, अपनी mental health का ख्याल रखें. Truly. और they start taking these things more seriously. I think like you mentioned कि we are not good at regulating our emotions, we are not good at articulating our emotions. हम जो पेरेंटिंग है उसके भी हमारे जो तौर तरीका है वो भी ठीक नहीं है. सो लाइक देर आर सो मैनी इश्यूज जो सोशली हमारे आमतौर पे तौर तरीके में पाई जाती है. बिकॉज वी आर नॉट सेल्फ अवेयर, वी डोंट वर्क. और मैं हमेशा कहती हूँ सेल्फिश पर्सन इज़ द मोस्ट सेल्फलेस पर्सन. प्लीज़ सेल्फिश हो जाएं, अपने ऊपर काम करें. आप खुद अंदर से आप पूरे होंगे ना, तो यू कैन ओनली गिव एट दैट पॉइंट. अगर आपका, मैं एग्जांपल वो देती होती हूँ कि 2 रोटियां हैं ना, एक रोटी है ना आपके पास, कोई आपसे आके मांगेगा ना तो आप कहोगे नहीं मैंने तो शाम में कैसे मतलब कैसे गुजारूंगा. लेकिन 2 रोटियां होंगी, आपका पेट भरा होगा, तो आप कहोगे यार चलो बेचारा आया गरीब तो इसको दे दो. तो इट्स द सेम विद योर इमोशनल एनर्जी कि अगर आप खुद आपका मतलब इफ़ यू आर फुलफिल्ड ओनली देन यू कैन हेल्प द अदर पर्सन. ये ओशो ने कहा था कि सेल्फिश पर्सन इज़ द मोस्ट सेल्फलेस पर्सन. यू कैन ओनली बी सेल्फलेस व्हेन यू आर सेल्फिश, जब आपकी अपनी नीड्स मेट हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है. हमारे यहाँ पे ये है, लोगों के लिए अच्छा करो, बी गुड टू पीपल. ऐसे बी गुड टू योर सेल्फ. इफ़ यू आर गुड टू योर सेल्फ यू विल ऑटोमेटिकली बी गुड टू पीपल, ठीक है. तो वो सेल्फिश के साथ हमारी बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन जो है वो कनेक्टेड है कि जी सेल्फिश बंदा नहीं, दुनिया के लिए करो अच्छा. दुनिया के लिए आप कभी अच्छा नहीं कर सकते जब आप अपने लिए नहीं करते. आपका मज़हब कहता है आप किसी की नमाज नहीं पढ़ सकते. अल्लाह ताला ने ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमन नेचर सेल्फिश है. अल्लाह ने नेकी ना रखी होती अच्छा काम करने के लिए तो कोई इंसान दुनिया में नेकी ना करता. ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी ना करता. हमें लालच ही नेकी का है. तो हम हज नहीं कर सकते, अपने माँ बाप का कितनी मोहब्बत करते हैं, नहीं कर सकते. अल्लाह ने कहा पहले अपना करो, ठीक है. ज़कात पहले अपनी दो. नमाज तो आप किसी की पढ़ ही नहीं सकते. तो अल्लाह मतलब क्योंकि इंसान जो है ना वो अपनी ज़ात से बाहर जो है ना उसके लिए सोचना मुश्किल है. तो जब वो अपनी ज़ात में फुलफिल्ड होगा तभी वो किसी और को जो है वो कुछ दे सकता है. तो आई ऑलवेज से दिस थिंग, आप डोंट मतलब चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस विद योर ओन सेल्फ. अपने पे काम करें. बिल्कुल. एंड आई रियली होप कि यू जॉइन अस सून अगेन सो दैट वी कैन आल्सो डिस्कस द अदर इश्यूज एज वेल.
Inshallah. It was lovely being here. Thank you so much for having me. Thank you for your time. Thank you.